Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, How Plants Increase in Numbers. You must have seen bees or butterflies flying and sitting on the flowers. Do you know why they sit on flowers? Discuss this in your class. The bright color and sweet scented smell of flowers attract bees and butterflies. They know that there is a sugary nectar inside flowers. Bees and butterflies collect the nectar of flowers. They also play a very important role in life cycle of plants. They transfer pollen from one flower to another. Pollen is a powder produced by the male part of a flower. This is carried by butterflies or other insects to the female part of the same type of flower. This process of transfer of pollen is called pollination. Once a flower has been pollinated, it can produce seeds. अच्छा, आपको पता है बीज एंड बटरफ्लाइज फ्लावर की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? उनको पता है कि उसमें एक नेक्टर होता है. नेक्टर एक्चुअल में फ्लावर का जूस होता है. और इसके अलावा जो बटरफ्लाइज या बीज हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट की लाइफ साइकिल में. ये पोलन्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक फ्लावर से दूसरे, बट वो सेम टाइप का होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन. और पॉलिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पॉलिनेशन की वजह से क्या होता है कि प्लांट में सीड प्रोड्यूस होते हैं और सीड प्रोड्यूस हो गए देन वो जर्मिनेट होगा और इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स का. A seed is a tiny round or oval shaped object. Generally, new plants grow from seeds. A seed contains a food store that can provide nutrient to a new baby plant. सीड आपको पता ही है. सीड से क्या होता है कि सीड से ही जनरली आपके जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं. Other ways in which plant can reproduce from body parts, vegetative reproduction through spore. अब कुछ और तरीके भी हैं जिससे कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बॉडी पार्ट से जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर स्पोर के थ्रू भी. Generally, most flowering plants reproduce from seeds. Seeds are formed in the fruit. Structure of a seed. Soak a few beans in water for 24 hours. Then remove the outer hard covering skin for the beans with your fingernails. You will find two halves called cotyledons. The baby plant lies between the cotyledons. देखिए, आप कुछ beans की सीड्स लीजिए और 24 आवर्स के लिए उसे सोक कर दीजिए. उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, उसका जो हार्ड कवरिंग है उसे रिमूव करना है और आपको दो हाफ्स मिलेंगे जिसे बोलते हैं कॉटिलीडन्स. और एक्चुअली जो बेबी प्लांट होता है वो इन कॉटिलीडन्स के बीच में होता है. अ सीड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. सीड कोट. इट इज टफ स्किन of the seed that protect the seed leaves. Seed leaves are cotyledons. These contain food for the baby plant or embryo. Some seeds like rice, wheat have one cotyledon and are called monocotyledons. Seeds like pea and beans contain 2 cotyledons and are called dicotyledons. Embryo, it is a small baby plant that grows into a big plant. अब एक सीड के आपके 3 पार्ट्स होते हैं. ये देखिए आपको सीड का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा. सबसे पहले आपका होता है सीड कोट, जो कि सीड की जो टफ स्किन होती है बाहर की, जो सीड लीव्स को प्रोटेक्ट करता है. इसके बाद आपके कॉटिलीडन्स होते हैं. जैसे कुछ प्लांट्स में आपको मैंने बताया कि अगर सिंगल कॉटिलीडन है यानी एक कॉटिलीडन है तो उसे बोलते हैं मोनोकॉटिलीडन. और जिन सीड्स में जैसे कि आपका पी या बीन्स आपने देखा होगा या चना देखा होगा उसमें 2 कॉटिलीडन्स होते हैं तो उसे कहते हैं डाइकॉटिलीडन्स. इसके बाद आपका आता है एम्ब्रियो. एम्ब्रियो एक्चुअल में आपका एक छोटा बेबी प्लांट है जो बड़े प्लांट में ग्रो करता है. What is germination? When a seed starts to grow, we say that is germinating. The process of changing a seed into seedling is called germination. In the starting of germination, the seeds absorb water and swells. This makes the seed coat soft and split open easily. The root is growing downwards to form the root system called radicle and later grow upwards to form the shoot system or plumule. अब देखिए germination क्या है. देखिए आप एक जो सीड होता है वो कैसे स्टार्ट होना ग्रो होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन. जैसे कि सीड को आप सोक करते हैं, उसमें से एक छोटा सा पार्ट निकलता है, तो ये जो प्रोसेस होता है जर्मिनेशन का होता है जिसमें सीड एक सीडलिंग में चेंज हो जाता है. तो ये जो स्टार्टिंग होती है जर्मिनेशन में क्या होता है, जब स्टार्टिंग होता है जर्मिनेशन का तो वो पहले सीड वाटर एब्जॉर्ब करता है, फिर वो स्वेल हो जाता है. इससे क्या होता है कि सीड कोट सॉफ्ट हो जाता है और फिर वो स्प्लिट हो जाता है. तो इसके बाद जो रूट है वो आपकी जाएगी डाउनवर्ड्स ग्रो करती है, ओके, जिससे रूट सिस्टम बनता है और जिसे रेडिकल कहते हैं. और ऊपर वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका शूट सिस्टम और या प्ल्यूमूल भी इसे कहते हैं. Ideal conditions for germination. For germination, seeds need these 3 things. Water. Seeds absorb water from the soil. Water swells the seed coat so that the baby plant can come out. Oxygen. For germinating, seeds need oxygen to breathe.
a warm temperature. A warm temperature helps to keep the seeds active. Seed can germinate even in dark. They do not need sunlight to germinate because baby plants get food from seed leaves, but seeds cannot germinate without a temperature. अब सीड को जर्मिनेट होने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि पानी की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वार्म टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. और वैसे आपके जो सीड हैं वो उनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, वो डार्क में भी जर्मिनेट हो सकते हैं, बट उनको एक टेम्परेचर चाहिए होता है. एक्टिविटी 1, टू शो दैट वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, टेक 2 shallow balls A and B. Place pieces of newspaper and some cotton wool in each bowl. Place a few mustard seeds on the cotton wool in each bowl. Keep the paper in A bowl soaked with water. Let the paper in B bowl remain dry. अब आपको 2 bowls लेने हैं और आपको कुछ न्यूज़पेपर के पीसेस लेने हैं, कुछ कॉटन वूल रखनी है दोनों ही बोल्स में. अब आपको कुछ मस्टर्ड सीड्स डालनी है दोनों ही बोल में और कॉटन वूल के साथ. अब आपने क्या करना कि ए बोल में, यानी इसमें आपने क्या करना है, न्यूज़पेपर डालना है, बट वो पानी में सोक्ड होना चाहिए, जबकि जो बी बोल में आप डालेंगे वो ड्राई होना चाहिए. ऑब्जर्वेशन, इफ़ यू वुड चेक द सीड्स डेली देन यू विल सी इन ए बॉल सीड जर्मिनेटेड. कंक्लूजन, वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ प्लांट थ्रू सीड. अब आप क्या देखेंगे कि जो आपका ए बॉल और बी बॉल, आप इनको दोनों को चेक करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपका जो ए बॉल है उसमें आपके जो सीड है वो जर्मिनेट होने स्टार्ट हो चुके हैं. तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि वाटर जो है जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. एक्टिविटी 2, पुट सम सीड्स इन अ बोल विच इज फुल ऑफ वाटर. डू यू थिंक दे जर्मिनेट इन वाटर? No, they do not germinate in water because when seeds are in water, they do not get air. Air is also necessary for germination of seed. अब आपने क्या करना है कि कुछ एक बोल में कुछ सीड्स लेने हैं, उन्हें पानी में डूबे रहने देना है. तो क्या वो जर्मिनेट होंगे? बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि जब वो पानी में सोक्ड है तो उन्हें एयर नहीं मिलेगी. इसका मतलब एयर भी सीड के जर्मिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Seed dispersal. You know, plants cannot move, but their seeds can roam around and go to different places. Think about if all the seeds fall near the mother plant, they will not have enough space to grow. The must move away of seeds is known as seed dispersal. Seed dispersal is a process of spreading seeds that allow plants to reproduce. They are scattered by the following agents. अच्छा देखिए, प्लांट्स तो अपने आप से मूव नहीं कर सकते, बट उनके जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं. हम ज़रा सोचिए कि सारे ही सीड अगर मदर प्लांट के पास ही गिर गए सारे, तो वहाँ पे क्या होगा? इतने सारे पेड़ हो जाएंगे कि उनको जगह ही नहीं मिलेगी ग्रो करने के लिए. इसीलिए सीड का डिस्पर्स होना बहुत ज़रूरी है. और इसके कुछ एजेंट्स हैं. तो देखिए, सबसे पहले डिस्पर्सल बाय विंड. सीड ऑफ मेनी प्लांट्स आर टाइनी, लाइट एंड हैव स्पेशल टफ्ट्स ऑफ हेयर और विंग्स दैट हेल्प देम टू कैरीड अवे बाय द विंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दीज प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स बाय दिस मेथड. सबसे पहला मेथड है विंड, हवा के थ्रू. जो कुछ आपके सीड्स लाइट होते हैं या छोटे होते हैं या उनके स्पेशल उसमें हेयर या विंग्स होते हैं, वो जैसी हवा चलती है बहुत तेज, तो एक जगह से दूसरी प्लेस में वो मूव करते हैं. कॉटन सीड्स हैव tufts of silk hair. Milkweed are like particles, so it moves in the air. Seeds of drumstick and sal trees have wings. Small seeds of orchids are extremely light and small. कॉटन सीड्स में टफ्ट्स होते हैं सिल्क हेयर के. इसी तरह से मिल्कवीड में पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में मूव करते हैं. ड्रमस्टिक और जो साल ट्रीज के सीड्स होते हैं उनमें विंग्स होती हैं. और जो ऑर्किड्स के छोटे छोटे सीड्स होते हैं वो इतने लाइट और बहुत ही स्मॉल होते हैं. Dispersal by water. Water helps in dispersal of seeds of plant living in water or a place near it. The seeds of these plants are spongy and have thick, light fiber coat. This helps them stay afloat in water and travel to distant places to germinate. For example, coconut and lotus plants spread their seed by this method. अब दूसरा मेथड है वाटर के थ्रू. अब वाटर के थ्रू कैसे होगा? वो प्लांट्स जो पानी के आसपास होंगे या पानी में ही हैं, उनके सीड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे. जैसे कि आपके हैं कोकोनट या लोटस प्लांट, ये इनके सीड कैसे स्प्रेड होते हैं? इसी मेथड से होते हैं, वाटर डिस्पोजल से. Dispersal by animals. Some plants produce edible fruits that are eaten by animals like birds, squirrels, monkeys, cattle, and bats. The seeds eaten along with the fruit are not digested. These animals excrete the seeds in different places and the seeds emerge into a new plant. For example, tomato, guava, and chili plants disperse their seeds by this method. अब कुछ प्लांट्स के ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसे खाते हैं, तो उन्हें जैसे एनिमल्स या बर्ड या स्क्विरल है ये खाते हैं, तो सीड जो है जब वो खाते हैं फ्रूट का वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो जो वो एक्सक्रीट करते हैं तो वो सीड एज इट इज बाहर आ जाते हैं. और इस तरह से क्या होता है कि सीड जो है, तो सीड से फिर एक नया प्लांट बनता है.
Animals and human beings eat fleshy fruits and throw away their seeds in different places. For example, mango and jackfruit plants disperse their seeds by this method. अब एनिमल और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, फ्लैशी फ्रूट्स को खाते हैं और उसका जो बीज होता है उसे फेंक देते हैं. और ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे खाया है हमने वहीं पे फेंक दिया. कई बार क्या होता है कि एनिमल्स या ह्यूमन बींग खाते खाते कहीं दूसरे प्लेस में उसे लेके चले जाते हैं. Some plants have different structure like hook, bud, spines, bristles and stiff hair on their fruit and seeds. These get stuck to the hairy skin of animal or clothes of humans and get dispersed to other plants. For example, fruits of xanthium have curved hooks. अब कुछ ऐसे plants होते हैं जिनके हुक्स होते हैं या उनके स्पाइंस होते हैं, तो वो एनिमल की बॉडी से चिपक जाते हैं या फिर कई बार ह्यूमन के कपड़ों से चिपक जाते हैं और फिर वो दूसरी प्लेस पे चले जाते हैं. Dispersal by explosion. Some fruits burst open or explode when they become dry. The force of explosion helps the seed to scatter away. कई बार क्या होता है कि फ्रूट पक जाता है तो उसके बाद वो खुल जाते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं जैसे ही वो ड्राई हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं हम डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन. फॉर एग्जाम्पल, लेडी फिंगर, चुरेनियम, pea pot and beans suddenly split into two halves and scatter their seeds far away. तो जैसे कोई मटर है, मटर जब एकदम से राइप हो जाता है तो सडनली स्प्लिट हो जाता है दो हाफ में और उसके जो सीड्स है वो बिखर जाते हैं. Reproduction without seeds. Not all plants reproduce by seeds. There are some plants like banana that do not produce by seeds. They reproduce from their body part like the root, stem or leaf. This type of reproduction is called vegetative reproduction. अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही प्लांट सीड से ग्रो करें. कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो अपने बॉडी पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. From stems, plants like rose and money plant can grow from stem cuttings. The stem cutting develop roots when put in moist soil. रोज़ या मनी प्लांट होता है, ज़रूरी उसकी हमें रूट की ज़रूरत नहीं है. आप उसका स्टेम लीजिए और उसके बाद स्टेम से ही उसका जो आप नया प्लांट उसमें से ग्रो कर सकते हैं और उसके बाद वो रूट अपने आप ही डेवलप कर लेते हैं. From roots, plants like sweet potato, carrot and wood apple when left in the soil grow into new plants. और रूट से आपको पता ही है, रूट से प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं. जैसे ही उनको मॉइस्ट सॉइल में रखा जाता है तो नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं. From leaves, plants like Bryophyllum and Begonia, elephant ear plant, have a small buds or leaflets on the margin of their leaves. When the buds come in contact with moist soil, new plants grow. अच्छा, Bryophyllum में क्या होता है कि इसकी लीव्स में ना छोटे छोटे स्मॉल बर्ड्स या उनको लीफलेट्स भी कहते हैं. तो उसके बाद ये लीफलेट क्या होता है कि अपने पेरेंट प्लांट से अटैच हो जाते हैं और उसके बाद जहाँ पे गिरते हैं वहाँ से एक नया प्लांट ये ग्रो हो जाता है. Which plant reproduce from spores? Plant like fern, moss and mushroom produce spores which grow into new plants on falling on the moist soil. अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जैसे कि आपका फर्न है या मशरूम है, ये क्या करते हैं, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद जैसे ही ये स्पोर्स किसी मॉइस्ट सॉइल में गिरते हैं तो वहाँ से नया प्लांट ग्रो हो जाता है. Where did tea originate? Many people like to drink tea. It is prepared in different ways in different parts of India. In Kashmir, green tea is made with crushed almond pieces and is called kahwa. The people of Ladakh make strong tea, salt and yak butter. But now in North India, people like to drink lemon tea and tea also has come in cold manner. अच्छा, टी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं. आपका जैसे कश्मीर में कहवा होता है, ये क्या होता है कि ग्रीन टी होता है और इसमें कुछ क्रश्ड आमंड पीसेस होते हैं. इसी तरह से लद्दाख में भी एक स्ट्रॉन्ग टी बनती है जिसमें सॉल्ट और याक बटर होता है. Do you know when did the tea invented? The Chinese were the first to start growing tea thousands of years ago for the medicinal value and taste. After that, the Japanese start cultivated tea. Tea cultivation started in Assam in India in 1828. Actually, tea आपको लगता होगा कि इंडिया से ओरिजिनेट हुई है, नहीं. ये टी को इन्वेंट किया था चाइनीज़ ने सबसे पहले एक मेडिसिनल पर्पस के लिए. उसके बाद जापानीज़ ने इसको स्टार्ट किया कल्टीवेट करना और इंडिया में सबसे पहले कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था असम में in 1828. Tea is an evergreen plant which grows in places at a height of 1000 to 2000 meters. It is continuously trimmed to keep it to a height of 2 to 3 meters so that it is easy to pluck its leaves. It requires a lot of water and is grown on hilly areas so that extra water can get drained easily. Standing water damages the crop. It requires warm weather and many hours of sunshine. In India, it is grown in Assam, Darjeeling and in the Nilgiris. टी आपका एक एवरग्रीन प्लांट होता है जो कि 1000 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई पे होता है और इसको कंटिन्यूअसली ट्रिम करना पड़ता है ताकि इसकी लीव्स को प्लक करना इजी हो.
इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और इसीलिए हिली एरियाज़ में होता है। बट हिली एरियाज़ में क्या होता है कि पानी की तो ज़रूरत होती है बट स्टैंडिंग वाटर नहीं, क्योंकि स्टैंडिंग वाटर से फिर क्रॉप डैमेज हो जाती है। इसको वार्म वेदर की ज़रूरत होती है और काफ़ी घंटे की सनशाइन चाहिए होती है। सम अदर प्लांट्स दैट ओरिजिन इन फॉरेन, देयर आर सो मेनी प्लांट अदर देन सनशाइन दैट हैव देयर ओरिजिन आउटसाइड इंडिया। देखिए कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका जो कि इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुए बल्कि दूसरे कंट्रीज से हुए हैं। तो देखते हैं, जैसे आपका टमेटो साउथ अमेरिका, क्लोव इंडोनेशिया, वाटरमेलन साउथ अफ्रीका, एप्पल सेंट्रल एशिया, व्हीट साउथ वेस्ट एशिया, कॉफ़ी इथियोपिया, अनियन इजिप्ट, रेडिश एंड प्लम चाइना। Some spices also have a foreign origin. Cloves and pepper originated in Indonesia. Cinnamon come from Sri Lanka. Some flowers like dahlia in Mexico and gladiolus in South America have foreign origin. कुछ आपके स्पाइसेस हैं जैसे क्लोव, आपका लौंग या फिर पेपर, ये आपकी इंडोनेशिया से ओरिजिनेट हुई हैं। इसी तरह से सिनेमन यानी कि दालचीनी श्रीलंका से आती है। और कुछ ऐसे फ्लावर्स भी हैं जैसे कि डहलिया, ये आपके मेक्सिको का ओरिजिन है। ये let us recall the process of transfer of pollens is called pollination. When a flower has been pollinated, it contains seed. A seed has 3 parts: seed coat, cotyledon and embryo. पोलन का जो ट्रांसफ़र होता है उसे पॉलिनेशन कहते हैं। और जब एक फ्लावर पॉलिनेट हो जाता है तो उसमें सीड्स होते हैं। एक सीड के 3 पार्ट्स होते हैं। The process of a seed growing into a new plant is called germination. Seed dispersal is a process of spreading seeds that allow plants to reproduce. Seeds ग्रोइंग का जो प्रोसेस है जब वो न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है इसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। और सीड डिस्पर्सल आपका प्रोसेस है जिसमें सीड स्प्रेड हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिससे कि प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर, एनिमल एंड बाय एक्सप्लोजन। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। अ टी प्लांट हैड फर्स्ट ग्रोन इन चाइना एंड ऑल्सो सम प्लांट्स रिलेटेड टू फॉरेन कंट्री। सीड डिस्पर्सल के काफ़ी सारे मैथड्स हैं। कुछ सीड्स आपके विंड से डिस्पर्स होते हैं, कुछ वाटर से, कुछ स्पोर के थ्रू। टी प्लांट आपका सबसे पहले चाइना में ग्रो किया गया था और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और इसकी प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।